Amen. So आज मैं कुछ बातें करूंगा थोड़ा सा बुक से, So I will share some things from the book. तो स्ट्रेट बात होगी. It will be straightforward. अगर बुरा लगे तो अंत में प्रार्थना भी होगी. If someone feels bad, we'll also pray at the end for you. ओके मगर आप जानते हैं अगर एक पुराना घर है ना, But you know, पुराना दादाजी का घर था, if there's an old house like an ancestral house, टूट रहा है, it's breaking उसमें कोई apart. रह नहीं सकता, चू रहा है, दीवार में दीमक लग गई है. Nobody can live in that house. There are termites all over. अगर एक नया घर बनाना है ना, If you have to make a new house, तो पहले जो पुराना खराब है उन नींवों को तोड़ना जरूरी है. then first the old that is rotten has to be destroyed. The foundation has to be replaced. मिट्टी के घर के ऊपर सीमेंट की भैया फ्लोर नहीं बना सकते आप. You cannot make a concrete floor on top of a dirt-made house. ओके नया सीखना है ना, If you want to learn new, many people want to learn but there is no true learning until you unlearn the things that are wrong. बहुत से लोग सीखना तो चाहते हैं पर कुछ नहीं सीख सकते जब तक जो पुराना जो गलत था जो सीखा था उसको नहीं हटाएंगे, उससे पीछा नहीं छुड़ाएंगे. ओके सो अगर जय में चलना है, If you want to walk in victory, आपको उस जगह में आना पड़ेगा you have to come to that place. और अपने मन में ये निर्णय करना पड़ेगा कि जो कुछ शिक्षाएं मैं सुनता हूं, YouTube में देखता हूं, लोगों को कहते हुए सुनता हूं, चाहे कितना भी पॉपुलर बंदा बोल रहा है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना. You have to come to a place where you will say, if I hear a teaching on YouTube, I hear a believer speaking about something, no matter who the person is, how popular, if they do not speak something aligned to the word, I will not receive it. मैं हमेशा आपको बोलता हूं इस कलीसिया में भी अगर हम कुछ ऐसी बात बोलें जो वचन के अनुसार के विपरीत है तो हमसे आके बोलो आप गलत सिखा रहे हो. So I always say this, if in this church we teach something which you find is against the word, come and tell us you're teaching wrong. क्योंकि इस कलीसिया में हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊंचा जो है वो परमेश्वर का वचन है. Because in this church the highest authority is the word of God. Amen. So शुरू करें, थोड़ा खोल के. All right, hallelujah. कलीसिया में आज एक इम्बैलेंस है. There is an imbalance in the church today. और वो इम्बैलेंस क्या है? What is that imbalance? That people have become devil conscious. कि लोगों की मानसिकता जो है वो शैतान के इर्द गिर्द है. उनकी जो चेतना है ना, उसमें ये शिक्षाएं, ये जो शिक्षा है ना, जो शैतान दुष्ट आत्माएं, जनरेशनल कर्सेस, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप और ये दुष्ट आत्मा और पूरी चेतना को क्या कर दिया है, उसको करप्ट कर दिया है. In their awareness, all they have is the devil, that demonic spirit, generational curses, that demon. Their entire awareness is corrupted by these wrong teachings. And people don't realize. और लोग नहीं पहचानते. But the more they focus on the devil, the more they magnify him. जितना ज्यादा वो शैतान पर ध्यान देते हैं उतना ज्यादा उसकी महिमा कर रहे हैं. So सब कुछ शैतान कर रहे हैं. टायर पंचर हो गया, शैतान ने मेरा टायर पंचर कर So दिया. everything the devil is doing, their tire gets punctured, the devil has punctured my अरे tire. शैतान के पास और इम्पोर्टेंट काम है आपके टायर पंचर करने से. Devil has more important works than puncturing your tire. इतना वेला नहीं है वो टायर पंचर करने आएगा. He's not jobless. Are you getting what I'm saying? Because they are obsessed with these teachings, everything becomes demonic. क्योंकि उनकी मानसिकता में ये बातें घूमती रहती हैं तो वो इस हर बात को दुष्ट आत्मा से, शैतान से जोड़ते हैं. And the enemy loves attention. और शैतान को पसंद है, दुश्मन को पसंद है जब उसको कोई अटेंशन देता है. जितना ज्यादा शैतान करोगे उतना बड़ा शैतान हो जाएगा. The more they'll do devil, the bigger the devil becomes in their life. शैतान कहेगा अरे भाई सारे मेरे बंदे यहाँ हो. The devil will call all his guys, come इस here. घर में रेड कारपेट बिछा है हमारे लिए. There's a red carpet for us in this house. ओके ठीक है अभी तक? You're okay? I am teaching you today how you can develop a victorious mindset. मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप
एक जयवंत मानसिकता को बना सकते हो अपने जीवन में। There are two extremes in the body of Christ. मसीह की देह में दो विपरीत छोर हैं Both are unhealthy. और दोनों ही अस्वस्थ हैं। One is where they talk about demons all the time, curses, दुष्ट आत्माएं, all these things. पहला जहां पर वो हमेशा दुष्ट आत्माओं की, शैतान की और श्रापों की बात करते हैं, 24 घंटे इसी बारे में बात करते हैं। दूसरा छोर जहां पे वो ऐसे जीते हैं जैसे शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता। The other extreme where they live as though the devil doesn't even exist. They are completely unaware of the wiles of the devil. उनको दुष्ट की युक्तियों के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है। We have to stand where Bible tells us to stand. हमें वहां पर डट कर खड़ा होना है जहां बाइबल हमसे कहती है खड़े होने के लिए। Okay? And I want to tell you, और मैं आपको in your story, आपकी कहानी में Satan is not the center. Jesus Christ is the center figure. शैतान आपकी कहानी का केंद्र नहीं है, यीशु मसीह आपकी कहानी का केंद्र है। Okay? Do you know there are no scriptures which tells us to go after Satan and fight the Satan? क्या आप जानते हैं कोई भी वचन ऐसे नहीं जो हमसे कहता है कि शैतान के पीछे जाओ, उससे लड़ो। The Bible says fight the good fight of faith. बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। The Bible tells us to resist the devil. बाइबल हमसे कहती है शैतान का सामना करो। That means he's coming to us. We are not coming. We are not going. इसका मतलब वो हमें परखने के लिए आ रहा है, हम नहीं जा रहे उससे लड़ने के लिए। And what does the Bible say? When you resist him, what will happen? और बाइबल क्या कहती है, जब आप उसका सामना करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो भागेगा, मगर कैसे भागेगा? He will run. दुम दबा के अपना लंगोट पकड़ के भागेगा। With his tails within his legs. ओ पास्टर जी, वहां छतरपुर के ऊपर इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है। Oh, pastor, there's a big demon over Chhatarpur. ओ अंकल जी, छतरपुर के ऊपर यीशु बहुत बड़ा है। Oh, uncle, there is a huge Jesus over Chhatarpur. उस दुष्ट आत्मा से भी बड़ा है यीशु। That Jesus is much bigger than that demon. जितनी भी बड़ी हो दुष्ट आत्मा हो, वो चींटी है यीशु के आगे। No matter how big a demon is, it is an ant before Jesus. The Bible says, बाइबल कहती है God will crush Satan under your feet. परमेश्वर शैतान को कुचल देगा आपके पांव के नीचे। He's not saying under my feet. He's already under God's feet. But he's saying, my child, my son, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे पांव के नीचे मैं शैतान को कुचलूंगा। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पांव के नीचे, but he's saying, my son, my daughter, I will crush the devil under your feet. Amen. यानी अपने जीवन में जितने शैतान के काम हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा। आपके पांव के नीचे हर एक शैतान का काम कुचला जाएगा यीशु के नाम में। This means every work of the devil against your life, the Lord will show you that he will crush that work under your feet. किसके पांव के नीचे? Under whose feet? बोलो मेरे पांव के Say नीचे। under my feet. पास्टर सामर्थ ने एक स्पॉन्टेनियस गाना बनाया था जब हम फेथ अरीना 1 के इनॉग्रेशन में थे। Pastor Samar made a spontaneous song in Faith Arena 1. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की Come on church. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे कहाँ पे? शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है। Come on declare. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की Come on declare it. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के
है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, हे! शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। कई विश्वासी खोपड़ी देख के डर जाते हैं। Believers are scared of